Hello 8th class, welcome to my social science class. In previous video we have read about the wars of Mysore. Let's start continues our chapter 2nd of history. Today we will be doing war with the Marathas. War with Marathas, Anglo-Marathas wars. After the third battle of Panipat, the Marathas lost their eminence, but soon under the leadership of Mahadji Scindia, they regained their lost prestige, but it was lost-lived. The mutual conflict between the Marathas chief gave an opportunity to the British to smash the Marathas. The conflict or wars between the Marathas and British are known as the Anglo-Marathas War in history. पानीपत की थर्ड बैटल के बाद जो मराठास थे वो एंग्लो मराठास वार को खो दिया गया था। मराठास गायब हो गए थे, बट जल्द ही महादजी सिंधिया की लीडरशिप में उन्होंने अपनी लॉस्ट हुई गरिमा को वापस कर लिया, लेकिन ये थोड़े समय के लिए ही चला। मराठा प्रमुख के बीच टकराव ने ब्रिटिश को मराठा को तोड़ने का मौका दे दिया। मराठा और ब्रिटिश के बीच लड़ाई को एंग्लो मराठास वार कहा जाता है। एंग्लो मराठास वार कहा जाता है। देन द फर्स्ट एंग्लो मराठास वार. First Anglo-Maratha War was fought between 1775 and 1782. During this time, Warren Hastings was the British Governor-General of India. After the death of Mahadev Rao in 1772, the British supported the claim of Narayan Rao's uncle Raghunath Rao to द पेशवाशिप. जो मराठा युद्ध था वो 1775 से लेकर 1782 के बीच लड़ा गया. ड्यूरिंग दिस टाइम, इस टाइम जो वरेन हेस्टिंग था वो इंडिया के ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे. आफ्टर द डेथ ऑफ महादेव राव की डेथ हुई थी 1772 में. माधव राव की डेथ होगी. उसके बाद जो ब्रिटिश ने नारायण राव को रघुनाथ राव के दावों पर समर्थन कर दिया था, उनको एक पेशावर बना दिया गया था. द मराठा चीफ सपोर्टेड नारायण राव सन नारायण वाज succeeded by his brother माधव राव who was soon murdered. स्वामी माधव राव एज अ पेशवा. जो मराठास थे उन्होंने नारायण राव के बेटे को समर्थन दिया था, जिसमें जय नारायण था, जो नारायण के बाद उनके पिता माधव राव जो जल्द ही चले गए थे, जो सवाई माधव राव की पेशवा के रूप में हत्या कर दी गई थी. जो नाना फडणवीस थे बिकम अ रेजेंट एंड द चीफ मिनिस्टर ऑफ मिनार पेशवा. All Marathas were united under the command of the efficient General Mahadji Scindia, who fought valiantly against the British and राघोबा एलिस. जो नाना फडणवीस थे वो रेजेंट बन गए थे और मीनार पेशवा के चीफ मिनिस्टर बन गए थे. ऑल मराठास एक पावरफुल जनरल महादजी सिंधिया की कमांड की उपज थी. द मराठास डिफीट देम. द फर्स्ट एंग्लो मराठा वार केम टू द एंड विद द ट्रीटी ऑफ सलबाई इन 1782. It was a test of time of these powers. According to the treaty, this young Savai Madhviji Rao was recognized as the right Peshwa and Raghunath Rao was the Pensoid. फर्स्ट एंग्लो मराठा वार जो 1782 में सालभर की संधि के साथ समाप्त हुआ, ये शक्तियों के लिए सही समय था. संधि के अनुसार जो युवा सवाई माधव राव को सच्चे पेशवा के रूप में मान्यता दी गई थी और जो रघुनाथ राव था उसको पेंशन दी गई थी.
The territory on the west of Jamna were the restored to Mahadji Scindia, and peace so prevailed between the Marathas and English for the next 2 decades. अगले 2 दहाकों तक मराठास और ब्रिटिश के बीच में शांति बनी रही, उनकी आपस में शांति बनी रही. The Second Anglo-Marathas War 1803 to 1805. After the death of Nana Fadnviswar, the white statesman, in 1800, there was power struggle between Peshwa Bajirao II and Daulat Rao Scindia on one side and Jaswantrao Holkar on other side. Holkar defeated the combined army of the Peshwa and Scindia. Bajirao II sought help from the British Governor-General Lord Wellesley, who brought him under the subsidiary alliance. After the death of Nana Fadnvis के बाद 1800 में सबसे इंटेलिजेंट व्यक्ति पेशवा बाजीराव के बीच एक शक्ति युद्ध संघर्ष छिड़ गया. एक तरफ तो दौलत राव सिंधिया और दूसरी तरफ जसवंत राव होलकर था. होलकर ने पेंडवान सिंधिया की संयुक्त सेना को हराया. बाजीराव ने ब्रिटिश जनरल लॉर्ड वेलेस्ली की मदद मांगी, जो उन्हें सहायक गठबंधन के तहत लाया था. बट subsidiary alliance was not acceptable to the Scindia and Wellesley. As a result, they declared a war against the British. They lost the war and were forced to enter into the subsidiary alliance. Holkar was not ready to accept this alliance, and as a result, the British attacked him. लेकिन सहायक गठबंधन से सिंधिया और भोंसले को स्वीकार नहीं था. एज अ रिजल्ट उन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ वॉर की घोषणा कर दी. ये युद्ध हार गए और मित्र देशों के गठबंधन में शामिल होने के लिए मजबूर हो गए. जो होलकर था वो गठबंधन स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था, और एज ए रिजल्ट जो ब्रिटिश थे उन्होंने होलकर के ऊपर अटैक कर दिया. The power of Holkar could not be fully challenged as Wellesley was the recalled to England from India. Holkar fell to the Punjab and the peace treaty was the concluded between the Marathas and the British. The British took some of their territories and strengthened that force there. होलकर था जो होलकर की शक्ति को पूरी तरह से चुनौती नहीं दी जा सकती थी, क्योंकि जो वेल्सली को इंडिया से इंग्लैंड वापस बुला लिया गया था. होलकर पंजाब भाग गए और मराठा और ब्रिटिश के बीच एक शांति संधि पर साइन किए गए. जो ब्रिटिश ने कुछ एरिया पर कब्जा कर लिया और अपनी फोर्स वहां पर तैनात कर दी.